So hello everyone, and this is the next part of the immunity. So here we'll discuss about this. Since we have got, I hope that I made the concepts clear about innate and adaptive immunity and how they are basically behaving. But now it comes to the most important part. I believe is that how both of them they work in a very well coordinated manner and very interdependent fashion. Like what does it mean? They are some on the other hand they are not exactly dependent, but both of their functions play a very important role in the mechanism. So come and let's see how they basically work in overall generation of the immune response. So starting from this, as you can see, I have like as I've mentioned in the diagram, like see you have macrophages or neutrophils. Now we know the phagocytic cells, dendritic cells are also there, but currently for this particular for making you understand about this concept, I took only the macrophages and neutrophils as an example. So see, this cells, as we already told, we have discussed, we have TLRs. Now what is TLRs? As you can recap, it is toll-like receptors, and under toll-like receptors also we studied the different types of toll-like receptors. So that's why I mentioned TLR1 and 2. Now we know that TLR1 and 2 are heterodimers. When there is a pathogen entry, when there is an infection, then this TLR1 and 2 from homodimer they change into a heterodimer, right? So suppose this is your virus, okay, that has entered inside the body. Just a minute. Yeah. So suppose this is your virus which has entered inside the body. As you can see, this is I mentioned in the red color zone. This is entered inside the body. Now this phagocytic cells, this macrophage, neutrophils, जो भी है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स है, अब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पैथोजन है उसकी पैटर्न से। मतलब जैसे बैक्टीरिया हुआ, अगर हम एग्जाम्पल लें कोई बैक्टीरिया जो बहुत ही हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है और वो एंट्री करने की कोशिश कर आपके शरीर में घुस भी गया है, अब इनेट इम्यून सिस्टम जो भी आपके इनेट इम्यून सिस्टम के जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज करेगा उसकी पैटर्न के थ्रू। उसके फ्लैजेला होता है, वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट आ जाता है कि उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं और वो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कौन करता है, हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स का काम एक ही है, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली आ रहा है उसको बायोकेमिकली आगे तक लेके जाना। तो ये रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये रिकॉग्निशन पार्ट तो हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। Yeah, it is done. So once it is recognized, that means there will be an activation, innate immune system automatically active हो जाएगा कि ये हमारे शरीर का ना ही हिस्सा है, ना ही ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है जो शरीर ने बनाया, बट इफ इट रिमेन्स इनसाइड आवर बॉडी इट कैन कॉज सम डेंजर। ना ये एक्सोजीनियस एंटीजन है जो बाहर से आए हुए हैं, ना ही ये एंडोजीनियस एंटीजन है। तो वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करने का काम होता है टीएलआरस का, जो इम्यून सेल के ऊपर रहता है। इम्यून सेल्स कौन है? अगेन दीज आर दी फैगोसाइटिक सेल्स। कोई भी फैगोसाइटिक सेल्स हो, these are basically your immune cells. So when a pathogen enters the body of a host, immune responses are generated first. Always immune response ही हमारा first line of defense है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कहीं बाहर से एंट्री करे, चाहे कोई दूसरे नेशन से इंडिया पे घुसने की कोशिश करे, द वेरी फर्स्ट वे दे कैन डू इज दे हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, and border for which we also have our own army there, which is the first line of defense called the BSF. So similarly they have to cross the BSF, and for our body's own BSF, that is the innate immune system. So activation of the innate immune responses is the very first thing which will be playing the major role. Now once this innate immune responses is generated, जब ये पैथोजन के साथ, पैथोजन मतलब मान चलते हैं कि कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में आया, ये बैक्टीरिया के साथ जब ये आपका इम्यून सेल्स इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्शन होगा, ये एनकाउंटर, ये जो दोनों के बीच में जो एनकाउंटर हुआ, ये आपका मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये मेरा है जो इम्यून सेल है। आप ये बैक्टीरिया और इम्यून सेल जिस तरीके से जैसे ये क्लोज आएगा, इसके बीच में एनकाउंटर हुआ, इंटरैक्शन हुआ, जैसे ये होगा ये डेंजर सिग्नल क्रिएट कर देंगे कि इमीडिएटली कि आप बॉडी के रेस्ट चीज़ें कर लो, कुछ कर लो। आप इनेट अब एडेप्टिव इम्यूनिटी को बोलेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे शामिल हो जाओ, काम करो एक साथ और इसको एनी हाउ बॉडी के आगे तक पहुँचने के पहले पहले इसको यहाँ पे ही ख़त्म कर दो, राइट।
साथ साथ ये जो मैक्रोफेजेस है ये भी साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देंगे, न्यूट्रोफिल्स रिलीज करेंगे साइटोकाइंस। अब कौन कौन सी साइटोकाइंस, कोई भी इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स जो है वो एक स्टॉर्म दैट इज कॉल्ड ए साइटोकाइन स्टॉर्म, ये क्या करेंगे, ये गाइड की तरह काम करेंगे। आपने पहले ही पढ़ा है साइटोकाइंस के बारे में, दीज आर लाइक गाइड्स। जब आप न्यू जगह पे जाते हो, आपको कोई नहीं जानता है, ना ही आपको पता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में गए हो, आपको नहीं पता रेड फोर्ट कहाँ पे है, तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ता है। आजकल चलो गूगल मैप है, पहले के ज़माने में जब गूगल मैप्स नहीं थे तो हमें एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ता था। हम इधर तो लोगों से बात कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह को समझने के लिए, तो यहाँ पे साइटोकाइंस कुछ इस तरीके से काम करता है। वो एडेप्टिव इम्यून सेल्स या एडेप्टिव इम्यून जो सिस्टम है, वो उनकी कंपोनेंट्स को बोलेंगे कि ये है आपका लोकेशन, यहाँ पे जाके आपको काम शुरू करना है। इन्फेक्शन यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, आप यहाँ पे जाके आपका जो जो ताकत है आप उससे इसको नष्ट करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आप जब मेडिकल साइंस की कुछ चीज़ पढ़ते हो, जब आप डॉक्टरी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। इवन इफ यू हैव टू स्टडी द एंटायर लिविंग सिस्टम, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स। बट सिमिलरली मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना इतनी आसान नहीं है। जो चीज़ आप देख नहीं सकते, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू योर imagination, and even you have to understand through logical sense. You have to apply logic, you have to apply your analytical skills, even you have to apply your other skills as well in order to make you understand of these things. देखो आपने नहीं देखा मैक्रोफेज को, ना ही मैंने देखी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मे भी हम इसको देख सकते हैं, जिसकी फोटोज आपने गूगल पे देखा होगा, कहीं जगह पे देखा होगा। बट जब हम पढ़ते हैं हमें ये कंसेप्ट इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि कुछ चीज़ें होता है बहुत बी सेल टी सेल इतनी कॉम्प्लिकेटेड। बट सच कहूँ, जब आप पढ़ने लग जाओगे यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। इवन आई कुडंट understand at the first glance, but if you start studying immunology, this will be a very big field. I think there is no end to immunology, even in many cases also. So yeah, we are going out of the track, so let's come into the track again. So आप ये सिग्नल जनरेट हो गया कि चलो डेंजर सिग्नल जनरेट हो गया, पैथोजन और आपके जो इम्यून सेल्स है उसके इंटरेक्शन हो गया है। डेंजर सिग्नल को आप ये साइटोकाइंस पहुंचाएगा किसको, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को। ठीक है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के पास अब बी सेल है, टी सेल्स है। बी सेल इमीडिएट एंटीबॉडीज तो जनरेट नहीं कर पाएंगे, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। इफ़ यू कैन रिमेंबर इनेट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इट जस्ट टेक्स अराउंड फ्यू मिनट्स टू आवर्स। ऑन द अदर हैंड एडाप्टिव को कभी कभी हफ्ते लग जाता है, मंथ्स लग जाते हैं उसको समझने के लिए। कोरोना वायरस के टाइम भी सेम तरीके से ये सेम फिनोमेना हुआ था, क्योंकि एकदम से आपके बॉडी तो रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, और स्पेशली जो ओल्ड एज में था वो बहुत जल्दी ही अफेक्टेड हो रहे थे। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट अ वेरी ओल्ड एज। आप जब 40s या 50s के आगे चले जाते हो ना, आपके बॉडी के वो क्षमता खत्म हो जाता है, तो तब हम वैक्सीन की ज़रूरत पड़ जाता है। वी हैव टू अप्लाई आर्टिफिशियल वे ऑफ सो दैट देयर बॉडी कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बट व्हेन इट कम्स टू अ यंग इंडिविजुअल, उनके एंटीबॉडी जनरेशन करने का क्षमता बहुत है, और अगर नहीं है तो मतलब अगर है भी, बट अगर थोड़े बहुत कम भी है, वी जनरली रिकमेंड कि आप कोई भी साइट्रस फ्रूट्स लीजिए, या कोई सोर्स ऑफ विटामिन सी या कुछ भी टाइप के विटामिन्स या मिनरल्स आप आपके डाइट बहुत इफेक्टिवली मेंटेन कीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। चाहे कोई भी आपके बीमार हो, आप इन्फेक्शन हो भी जाए, बट आप उसके साथ लड़ सकते हो। दैट इज आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट मेनी पीपल थिंक दैट इफ यू हैव टू टेक सम तुलसी का ड्रॉप्स एंड समथिंग वी विल गेट रिकवर्ड। दिस इज नॉट द थिंग। एक्चुअली आई एम जेन्युइनली टेलिंग इट ओपन टू एवरीवन कि ये ऐसा नहीं होता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप जरूर होता है, बट आप इसका ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको ये इन्फेक्शन होगा ही नहीं। सिंपल थिंग इज दैट। सो टॉकिंग अबाउट द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, अब जब ये डेंजर सिग्नल हो गया है और ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम भी अब जनरेट हो गया है, सो ये आपका स्ट्रेंथन किसको करेगा? ये मैक्रोफेज को स्ट्रेंथन करेगा, या जो भी आपके फैगोसाइटिक सेल्स है उसको आपका स्ट्रेंथन कर देंगे। मतलब कि ताकि अगर आपके एक बैक्टीरिया अंदर चला भी गया या वायरस चला गया, वो और भी अगर इसकी एंटिटीज अंदर आने की कोशिश करे, इमीडिएट नष्ट कर पाए एट दी वेरी फर्स्ट। जो पहले फर्स्ट एंट्री में नहीं कर पाए थे, सेकेंड या थर्ड एंट्री या आने वाले एंट्री पे वो उसको रोक पाए। हाउ? बाय डिस्प्लेइंग दिस एंटीजन फॉर रिकॉग्निशन बाय द टी सेल।
Yeah, this is the only way to do that. So then after it's displaying, it will produce the signals, and by enhancing the efficiency of the innate responses. तो इनेट रिस्पॉन्स को जनरेट करके स्ट्रेंथन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. अदरवाइज ये फर्स्ट लाइन होता है ना, और इसको ब्रीच करके अगर अंदर शरीर में किसी भी तरीके से घुस गया, इसको रोकना बहुत मुश्किल है. एडेप्टिव इम्यूनिटी को बहुत टाइम लगता है, मतलब अराउंड लाइक इट टेक्स वीक्स और मंथ्स समटाइम्स. तो इसको ये पूरे आपके जो पैथोजन है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम की ज़रूरत पड़ता है. ऑन दी अदर हैंड इनेट बहुत क्विकर रिस्पॉन्सेज देता है. तो उस हिसाब से हमें इनेट को बहुत स्ट्रेंथन करना, आई थिंक दैट इज़ द वेरी फंडामेंटल थिंग टू डू. टी सेल्स प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस फर्दर इंक्रीजिंग द एबिलिटी. हाँ, तो साइटोकाइंस जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ये टी सेल्स भी जनरेट करते हैं, टी हेल्पर सेल्स जनरेट करते हैं, ताकि जो हमारे इनेट इम्यून सेल्स है, जो मैक्रोफाज हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, ये सारे के सारे आपके माइक्रोब्स को फर्स्ट लाइन में ही इसको ख़त्म करते हैं. बट वन मोर थिंग इज़ दैट एडेप्टिव इम्यूनिटी को अभी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, आई थिंक. बिकॉज आपकी एक बार इन्फेक्शन हुआ, जैसे किसी को आप मान लीजिए कोरोना वायरस एक बहुत ही पुराना, आई थिंक नाउ इट्स like an old example, I'm not taking it again and again. आपको किसी भी तरीके से वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, वायरल फ्लू हो गया, तो एक बार होने के बाद द चांसेस विल बी रिड्यूस्ड. आपको पता है क्यों हो सकता है आपको इन्फेक्शन, बट आप उसके साथ लड़ इसलिए सकते हो क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास है इम्यून मेमोरी सेल्स. अब ये मेमोरी सेल्स आप याद करते हैं, मेमोरी मीन्स याद करना किसी चीज़ को. ये सेल्स आपके एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पैथोजन का हिस्ट्री, किस तरीके से उसने इन्फेक्शन किया, एंटायर पैथोलॉजी याद रख पाते. So I can think you can understand that what is the significance of learning molecular biology at this molecular level. So in this way, by binding to the pathogens, the way this particular cells, they bind to the pathogens and they recognize them and present them to the respective cells. Antibodies mark their target कि किसको हमें नष्ट करना है, और इसी तरीके से वो मार्किंग करता है, वो लेबल कर देता है कि ये है हमारा एंटीजन, इसको हमें ख़त्म करना है, for the attack by complement mechanism. So in the next lecture, we'll discuss about what are the different types of immune cells in more detailed concepts, like we'll discuss about hematopoietic stem cells, we will discuss about the T cell progenitors and B cell progenitors in further more details, and also we'll have a separate lecture on studying the individual WBCs in further more details. So I think today's this is the entire topic I've discussed, and with much clarity and clear concepts I try to explain it with you guys. And if you have any doubt, please let me know in the comment section. I'm always open to that. I always request you that you please raise your queries. Even if I don't know the answer, I'll definitely read upon it and will get back to you. And of course, you please share with your loved buddies, especially who have a very interest in biology, because it's an amazing field to study, and you'll get to know more and more in different concepts. And talking about the last, that immunology is a vast concept and there is lots much to do in research areas. So please guys, do study immunology. I think this is a concept where you will get maximum questions in different competitive exams, as well as especially the individuals who are studying biotechnology or who are doing engineering biotechnology, or even they are pursuing BSc or MSc and PhD. This immunology is a very interesting field to study upon, because there is lots much to do in the